Yes, good morning to one and all once again. I welcome all of you. I think today is your first day of your lecture, I mean. So, on behalf of Ghanshyam Das Saraf College, I welcome all of you in your BCom course. Yes. Myself, Professor Rajkumar Jaiswal, and I will be conducting your mathematics and statistics subject lecture. I am teaching here in this college from last 10 year, and overall I'm having 20 year of teaching experiences. Talking about my subject, the name of the subject is mathematical and statistical techniques. So basically here there are going to be two components. The first one is mathematics and the second one is statistics. So there are two parts here in this. You can say two sections are there. Section 1 and section 2. So let us understand what is all that about. Uh, right now, we are going to deal only with the first semester, which will be consisting of 100 marks. The overall weightage of this particular subject, in fact, for every subject, the weightage will be of 100 marks. So we will discuss about the syllabus first of all, and after that, we can start with the topic. All right. So syllabus. Let us see what is the syllabus for your mathematical and statistical techniques. So as I said, like there are two sections, section 1 and section 2. So section 1, that is mathematics, will be of 40 marks, 40 marks. And the second section, that is section 2, statistics, that will be for 60 marks. All right. So 40 plus 60 together make us 100. So let us see what is there in section 1 basically. So there are going to be two units. Unit 1. What is unit 1? So unit 1 will be shares and mutual fund. The weightage of this particular unit will be 20 marks. All right. Then similarly, we have one more unit, unit 2. The unit 2 have the topic as sorry, permutation, combination, and LPP. So the weightage of this particular unit will be also for 20 marks. So the overall weightage of mathematics will be 40. 20 plus 20 together make us 40. Then you have section 2, that is statistics, that will be consisting of 60 marks. Here you're going to have three units, unit 3, unit 4, and unit 5. Let us see what is all that about. So unit 3 is measure of central tendency. The weightage of this will be 20 marks. Then the next unit, unit 4, is elementary probability, which will be again consisting of 20 marks. Then unit 5. This unit is basically your decision theory. This is again going to be for 20 marks. So 3 units from statistics, and the overall weightage of this statistics will be 60 marks. So 40 marks will be from mathematics and 60 marks will be from statistics altogether. 40 plus 60 make 100. So this is what the syllabus is there for your first semester. Now, in this, I'm not going to have the entire topic. I'm not going to take all the sections here in this. So I will be just dealing with your first section. Section 1 will be taken by me. All right. There are two teachers for this, mathematics and statistics. So as far as I'm concerned, I'm going to have the section 1, that is mathematics. So I will be covering unit 1 and unit 2, shares and mutual fund, and the second one is permutation, combination, and LPP. Whereas the second section will be taken by another ma'am, and she will be handling with the remaining three unit 3, unit 4, and unit 5. In a week, you have altogether 6 lectures that has been allotted for mathematics and statistics. So out of that 6 lectures, 3 lectures will be taken by myself, and the remaining 3 will be taken by Seema Agarwal ma'am. The one ma'am is there for the stats part, so she will be handling with that particular component. As far as I'm concerned, I will be having with unit 1 and unit 2. So I will have 3 lectures. So out of this 3 lecture, 2 lectures will be for the lecture purpose, whereas 1 will be utilized for tutorial. Now, what is tutorial? I'll let you know on this. Tutorial means you have to solve the problem which already we had studied in the lecture. So if you are having any kind of doubt,
you can ask there, or I can give you some kind of assignment of the topic which we had learned earlier. So that all thing can be done in the tutorial part. So one lecture of tutorial will be assigned in a week. As far as your division is concerned, I will be taking it on Thursday, the last lecture. That particular lecture will be considered as a tutorial. Thursday ka last lecture will be taken as your tutorial lecture. All right. I think that major of you must not have taken mathematics in the 11th and 12th standard, so they may find it difficult. And more or less, what I'm going to take with you all people, I'm going to have with mathematics. So mathematics will be more difficult as compared to statistics. क्योंकि in mathematics you require basic concept, that is more important, whereas stats में formulas are there. Stats को क्या formula से भी कर सकते हैं, but maths में बहुत सारा concept लगता है. So you will find mathematics little difficult. Basically the one who have not taken it in the 11th and 12th course, जिन्होंने नहीं लिया उनको बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा. तो दे शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट हाउ इट इज टू बी डन. जहां तक स्टैट्स का बात है, that will be little bit more comfortable and simple because all that has to be done using the formulas, and calculation is more in the statistics part. Even scoring part also more is there in statistics. Maths में थोड़ा scoring का chances कम है. So as far as I am concerned, I will be having with which topic? Unit 1 and Unit 2. I hope everyone is clear by now. You can just put in the chat so I can get to know whether you are able to understand or not. आप chat में लिख सकते हैं yes, no, are you able to get out what I mean? Like, one more thing, whenever we are dealing with any of the topic, basically in my subject, I want every one of you to have it the notebook and take down the problem basically, which I'm going to take it on the PPT. You by taking screenshot, it will not at all help to you all. Screenshot लेके कुछ मतलब नहीं. You can take it. It is not like you can't take it for reference. You can take it. Sometime what happened कि अगर आपको time नहीं मिल पाया लिखने के लिए, तो later on you can refer and you can just take down the notes from that screenshot. But खाली screenshot लेके करेंगे तो नहीं होगा. You have to write down the problem that has been discussed in the lecture. On the notebook. You maintain a separate notebook. That will be more beneficial so that every time you can refer it from there. ऐसे ही खाली हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेके करेंगे, इट विल नॉट एट ऑल हेल्प. अभी समझ जाएगा, लेकिन 2 दिन के बाद जब भी करेंगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द थिंग इन दैट केस. That is better advice to all of you that you just make a separate notebook and take down the problem that has been done in the PPT. All right. So after this, let us move ahead and let's see what is the next one. Anyway, I will be having for the day which topic I'm going to take it. आज मैं क्या लेने वाला हूँ, तो I'm going to start with shares basically. Unit 1 we are going to have it. I'm going to take down the first unit, that is shares. शेयर्स और म्यूचुअल फंड है, बट पहले हम लोग शेयर्स स्टार्ट करेंगे. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द डे. ऑल राइट. So after this, about the books, if you ask, then these are the various books that are available for your mathematics and statistics subject. Generally, I refer with the first one, that is Manan Prakashan, that is the publisher name, and the author name is also given it to you as Welling and Saraf. There are other books also. Vipul Prakashan is also there. Shet Prakashan is also there. But generally we go by the first one. That is what we are referring for the first semester and all. So you can take any of the book, whichever is comfortable for you all. So these are the name of the publisher as well as the author of the mathematical and statistical techniques. All right. So let's go ahead. So shares, I'll just tell you the basic of shares, what we're going to have it here in the way. Again, I repeat, for shares, the concepts is required, and then every problem will be independent. It will not be depending on the previous problem. So you require more of concept. So let us see what are that all about. All right. तो shares देखते हैं हम लोग. तो पहला हम लोग definition देखते हैं, shares किसको बोलते हैं. तो here you can say the capital collected through issues of shares, that is owned by the capital of the company. That is basically the capital. और उसका जो छोटा सा पार्ट होता है, smallest part, that is basically known to be the share. This is the basic definition. Anyway, definition will not be there in the examination. So this is the basic definition. Overall, they had given it to you. हाँ, अभी ये important है. What are the components that are involved in the shares? कौन से components, कौन से parameters we are going to use while we do with the problem? That is more important. तो पहला देखते हैं हम लोग क्या है. फेस वैल्यू. हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहला
कंपोनेंट या पहला पैरामीटर जो है शेयर्स का वो है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू किसको बोलते हैं? इट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द शेयर एट विच द कंपनी डिक्लेयर द शेयर सर्टिफिकेट। जब पहली बार हम लोग परचेस करते हैं शेयर, तो जो वैल्यू पे हम लोग परचेस करते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। जिस वैल्यू पे हम लोग शेयर्स को फर्स्ट फ्रॉम द मार्केट वी परचेस, दैट इज नोन टू बी फेस वैल्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू, अनदर नेम ऑफ दैट इज नॉमिनल वैल्यू, और उसको पार वैल्यू भी बोलते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है मार्केट प्राइस। आफ्टर यू परचेस, आफ्टर सम टाइम द प्राइस ऑफ द शेयर्स गोज अप्स एंड डाउन, यू नो, स्टेबल नहीं रहता है। जो भी शेयर्स का प्राइस रहता है, आप जब भी खरीदते हैं तो कुछ और रेट रहता है, आफ्टर सम टाइम इट विल हैव सम डिफरेंट रेट, इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस। तो जो भी मोर और लेस रहेगा रेट, after some time whatever the rate is there, that current price will be basically known to be the market price, you know। और इसका दूसरा नाम है quoted price. This is also known to be quoted price. So this is the second component that has been involved in the shares. Then as I said, कि मार्केट प्राइस कभी कम होता है फेस वैल्यू से, कभी ज्यादा होता है। तो अगर कम रहेगा मतलब लॉस में है हम लोग, तो वैसे वाले शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट शेयर बोलते हैं। अगर मार्केट प्राइस हमने जिस रेट में खरीदा था उससे कम हो गया, तो दैट मीन्स वी आर इन लॉस। सो दैट काइंड ऑफ बेसिकली शेयर इज नोन टू बी डिस्काउंट शेयर, ऑल राइट। अगर ज्यादा हुआ, सपोज इफ इट इज मोर, इफ द मार्केट प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू, तो इसमें हम लोग को प्रॉफिट होने का ज्यादा चांसेस है। तो ऐसे वाले शेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम शेयर, दैट इज नोन टू बी एन प्रीमियम शेयर। एंड सपोज लाइक दोनों इक्वली है, जैसे मार्केट प्राइस जब भी हम लोगों ने लिया था तभी और अभी करंटली उसका वही रेट है, तो इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे शेयर इज एट द पार वैल्यू व्हेन द मार्केट प्राइस एंड द फेस वैल्यू आर इक्वल। Generally होता नहीं, but anytime if it is coming to be equal, then that is known to be at par value. So these are the three cases that happen with market and face value का combination, you know. It can be less, it can be more, or it can be equal. So depending upon the status of that particular share, accordingly we can define discount, premium, or par share. All right. डिविडेंड, अभी डिविडेंड क्या होता है? एक तरह से प्रॉफिट होता है। दिस डिविडेंड इज बेसिकली द प्रॉफिट दैट इज बीन ऑब्टेन बाय द शेयर होल्डर। जिन्होंने पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, उनको कंपनी से मिलता है आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस एंड द अदर रिजर्व फंड। उसके बाद जो बचा हुआ रहता है वो डिवाइड होता है अमॉन्ग द शेयर होल्डर, एंड दैट इज बेसिकली नोन टू बी डिविडेंड, ऑल राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो याद रखो, डिविडेंड जब भी कैलकुलेट करना है तो हम लोग को फेस वैल्यू से कैलकुलेट करना है, मार्केट प्राइस से नहीं कैलकुलेट करना है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड रिमेंबर, व्हेनेवर वी डील विद द प्रॉब्लम ऑन डिविडेंड, जब भी हम लोग डिविडेंड का प्रॉब्लम करेंगे तो क्या देखना है कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू से ही करना है, नॉट विद मार्केट प्राइस। डिविडेंड हैज टू बी ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस को लेना नहीं है डिविडेंड के टाइम पे। I will let you know what are the formulas that is to be taken, but अभी फिलहाल याद रखो, डिविडेंड जब भी कैलकुलेट करना है तो with respect to face value, all right। So after this let us see what is the next। दूसरा है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है? थर्ड पार्टी जो शेयर इन्वेस्टर से परचेस भी करवाता है और उससे सेल भी करवाता है, तो दैट इज नोन एज ब्रोकर बेसिकली। तो ब्रोकर जो कमीशन लेता है either for purchasing or selling of the share from the shareholder, then whatever the amount he is taking as an his charge remuneration, that is known to be the brokerage, all right। तो इसके ऊपर भी देख लो, एक नोट है कि जब भी हम लोग ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे तो रिमेंबर दैट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट प्राइस। ब्रोकरेज हमेशा मार्केट प्राइस से कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू से नहीं, जबकि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू से कैलकुलेट होता है। दिस टू पॉइंट यू शुड रिमेंबर, बिकॉज व्हेन वी डू विद द प्रॉब्लम, अगर डिविडेंड आया तो फेस वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, और ब्रोकरेज आएगा तो हम लोग उसको मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करेंगे। दैट इज हाउ इट इज टू बी टेकन केयर, ऑल राइट। आई जस्ट टेल यू व्हाट आर द फॉर्मूलाज, सो यू कैन जस्ट टेक इट डाउन, यू नो। ये फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100 इनटू टोटल फेस वैल्यू।
So the first formula is for total dividend. The formula is rate of dividend divided by 100 into total face value. इसमें टोटल फेस वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया है TFV. सो दैट इज बेसिकली फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर. ये फॉर्मूला है उसका. ऑल राइट. So that is how the total dividend is calculated. The second formula है total investment. So total investment है market price of one share multiplied by number of shares. So whenever total investment is been asked, this particular formula has to get used. Market price of one share multiplied by number of share. Then the B part है, अगर इसी में market price पूछ लिया तो टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होगा. तो नंबर ऑफ शेयर इज टेकन ऑन दी अदर साइड, यू नो, और डिवाइड करेंगे तो फिर हम लोग को मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर का मिलेगा. फॉर्मूला एज टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. सिमिलरली इफ यू आर बीन आस्क्ड टू गेट विद द नंबर ऑफ शेयर्स, अभी क्या पूछते हैं क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम लोग को फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. अगर नंबर ऑफ शेयर्स पूछा है क्वेश्चन में, तो उस केस में हम लोग को टोटल इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, मार्केट प्राइस दिया रहेगा. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we will take the ratio of it, total investment divided by market price of one share. So by this we can calculate with the number of shares. All right. तो rate of return अगर पूछा है तो टोटल डिविडेंड, जो कि हम लोगों ने पहले कंपोनेंट में कैलकुलेट कर चुके हैं टोटल डिविडेंड, वो लेना है डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट. 2A में तुमने टोटल इन्वेस्टमेंट देखा होगा, तो टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट into 100. So that is how we are going to calculate the rate of return on shares. और उसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी दिया, और एक फॉर्मूला दिया है, अगर टोटल डिविडेंड नहीं दिया है, डिविडेंड पर शेयर दिया है, वन शेयर का ही डिविडेंड दिया है, तो उस केस में डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100. अगर हम लोग को क्वेश्चन में डेटा में ये दिया है, टोटल डिविडेंड ना देके केवल डिविडेंड ऑफ वन शेयर दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट ना देके केवल मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर दिया है, तो उस केस में ये रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला. क्वेश्चन आई मीन फॉर्मूला नंबर 3B विल बी यूज इन दैट, यू नो. So these are the some of the basic, formulas of shares that is to be taken care while we do with the problems. So all of you can have with the screenshot and later on, you can take down on the notebook. ये बहुत important है, क्योंकि जब भी मैं प्रॉब्लम करेंगे तो ये सब रिक्वायरमेंट रहेगा. तो अभी फिलहाल तो स्क्रीनशॉट ले लो and you can just take down in the notebook और लास्ट में बाद में नोटबुक में ले लेना after the lecture get over, because until and unless you write it down this will not at all help. जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप कर नहीं पाएंगे. तो ये 3 फॉर्मूले जो मैंने बताए बेसिक फॉर्मूला, इसमें कहीं पे भी ब्रोकरेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ. अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो भी फॉर्मूलेज बताने वाला हूँ दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू द ब्रोकरेज. ब्रोकरेज मतलब थर्ड पार्टी विल बी कमिंग and that will be charging with remuneration of either you're purchasing the share or for selling the share. So these are 3 basic formulas without brokerage, बोल सकते हैं इसको, विदाउट ब्रोकरेज. ब्रोकरेज वाला देखते हैं इसके बाद. ऑल राइट. तो दिस फॉर्मूला इज रिगार्डिंग द ब्रोकरेज. तो ब्रोकरेज जब भी रहेगा तो पहले हम लोग परचेस प्राइस बोलेंगे, मार्केट प्राइस की जगह पे क्या बोलना है, परचेस प्राइस बोलना है. तो परचेस प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस तो देना ही देना है प्लस ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा. तो मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज, दिस विल बी योर purchase price per share. I have written the short form as PP. While dealing with the problem, we will write down with the short form basically, so you can understand and refer it. और उसके बाद टोटल परचेस निकालना है, जिसको हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट बोलते थे. अभी तक यहाँ पे टोटल परचेस बोलेंगे इंस्टेड ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट. नाउ इट इज टू बी सेड एज टोटल परचेस. सो दैट इज परचेस प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. फिर परचेस करने के बाद कुछ टाइम के बाद समझो हम लोग को सेल करना है, तो उस केस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस पर शेयर and that is given as market price minus brokerage. तो जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसमें से ब्रोकरेज को माइनस करना है. So that is how the selling price will be obtained and after that the total sale, मतलब सब कुल मिला के कितना पैसा मिलेगा अगर हम लोग बेचेंगे, तो उसके लिए टोटल सेल बोला जाता है, T.S. इसका है सेलिंग प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेलिंग ऑफ द शेयर, for 5A and 5B. These 2 formulas will be used whenever we are selling the share with the help of broker. टोटल गेन, कुल मिला के कितना प्रॉफिट होता है वो देखना है. तो टोटल सेल माइनस टोटल परचेस. हम लोग को पता है ना प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है SP माइनस CP. वी हैड सीन इन द लोअर स्टैंडर्ड. प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो वहां पे वो उस फॉर्म में था, यहाँ पे ऐसा आएगा, टोटल गेन आएगा टोटल सेल
माइनस टोटल परचेस। नेट गेन क्या होगा कि टोटल गेन तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ जो हम लोग ने टोटल डिविडेंड देखा था पहले वाले स्लाइड में, तो दोनों को मिला देंगे तो हम लोग को ओवरऑल गेन मिलेगा। एक तो डिविडेंड मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट द टोटल गेन, सो both if you are adding together that will be your net gain. Percentage पूछा, what is the percentage of profit you have got it? So in that case total gain divided by total purchase into 100, that is the formula to be taken care when the percentage profit has been asked in the question, you know. तो बहुत सारे पैरामीटर्स है जो क्वेश्चन में पूछेंगे, उसके हिसाब से हम लोग को अकॉर्डिंगली फॉर्मूला सिलेक्ट करके वो यूज करना है, यूटिलाइज करना है. सो इट इज लिटिल बिट यू नो टीडियस आल्सो. या द रिमार्क ऑलरेडी है डिस्कस विद यू ऑल पीपल कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है. मैंने स्टार्टिंग में बताया डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे, और जब भी परचेस करते हैं शेयर या सेल करते हैं उस टाइम पे वो कैलकुलेशन हमेशा मार्केट प्राइस से ही होता है. व्हेनेवर आइदर यू परचेस, देखो फॉर्मूला नंबर 4A 5A, परचेस एंड सेलिंग दैट इज कंसर्न विद मार्केट प्राइस. देखो मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज, जब भी परचेस करेंगे तो प्लस ब्रोकरेज करना है. व्हेनेवर यू नो यू सेल इट देन इट इज माइनस ब्रोकरेज. और थर्ड वाला पॉइंट है कि ब्रोकरेज कभी भी कैलकुलेट करना है तो वो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पे करना है. So all of you just have the screenshot of this and later on you can take this also on your notebook, you know, so that you can refer it as and when it is required. जब कभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो you will require with the formulas, so आप वो नोटबुक से देख सकते हो. नहीं तो जब भी मैं प्रॉब्लम करूंगा तो सारे फॉर्मुलेस तुमको दिखेगा नहीं ना, तो आई विल बी सिलेक्टिंग सम ऑफ देम एंड एट दैट टाइम यू कैन रेफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, यू नो. तभी आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे और कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं. तो ये दोनों स्लाइड का जो फॉर्मुलेस है ये आपको बाद में लिख के रखना है नोटबुक में, क्योंकि द एंटायर चैप्टर ऑफ शेयर्स विल बी बेसिकली ऑन दिस मेनी फॉर्मुलेस. म्यूचुअल फंड विल बी द सेकंड कंपोनेंट, वो बाद में देखेंगे, पहले तो हम लोग शेयर्स का ही देखने वाले हैं. So I hope like by now everyone has taken with the screenshot and later on you can, you know, go through and take down on the notebook. So I will have with two problems also for the day and let us see how that has been done. देखो क्वेश्चन कैसे आता है. तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द फेस वैल्यू. इसमें फेस वैल्यू पूछा है. दिस यू हैव टू राइट डाउन राइट नाउ, ये लिख लेना अभी सबको. देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ. द स्टेप शुड बी इन द सेम मैनर सो दैट यू कैन गो इन द सीक्वेंस, यू नो. सिस्टमेटिकली सब लोग यूनिफॉर्मिटी एक ही मेथड से करेंगे. फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर if an investment of rupees 9 lakhs is put into purchase of 8% of shares quoted at rupees 15 each, which is earning a total dividend of rupees 9,600. तो क्वेश्चन रीड करने के बाद पहला मेकआउट करना है इसमें पूछा क्या है. तो वी कैन वेरी इजीली मेकआउट क्या पूछा है इसमें. क्या पूछा है, what has been asked here in this, you can put in the chat box. Face value, you know, वेरी इजीली कैन मेक आउट. फाइंड जहां पे रहेगा वो देख लेना है. तो क्या है फेस वैल्यू. दिस इज व्हाट इट इज आस्क्ड हियर इन द क्वेश्चन. ऑलराइट, अभी हमको करना क्या मैं बता देता हूँ. पहले तो हम लोग को लिखना है, वी हैव टू राइट डाउन व्हाट आर द गिवन डेटास. क्या क्या डेटास दिए हैं वो हम लोग को सिस्टमेटिकली लिखना है. उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे. देखो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ तुम लोगों को. तो पहले मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट गिवन डेटा इज टोटल इन्वेस्टमेंट. दिया है ना टोटल इन्वेस्टमेंट, हाउ मच इट इज गिवन. कितना दिया है 9 lakhs. So the first given data I have written as total investment as 9 lakhs. All right. A market price of one share कहाँ दिया है. कोटेड, यू नो कोटेड मैंने डेफिनेशन में बताया था. कोटेड प्राइस जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस को बोलते हैं. तो कितना दिया है कोटेड प्राइस 15 रुपीज. तो मार्केट प्राइस है 15. फिर लेट अस सी द थर्ड डेटा. जो परसेंटेज में रहता है याद रखो वो रेट ऑफ डिविडेंड ही रहेगा. क्वेश्चन में जहां पे भी ना परसेंटेज में दिया है तो जनरली दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड. तो यहाँ 8% दिया है. दिस विल बी योर थर्ड गिवन डेटा, दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड. ऑल राइट. और भी कुछ दिया है 9600 है. क्या है 9600, व्हाट इज 9600, कैन यू मेक आउट. उसके पहले देखो क्या लिखा है, टोटल डिविडेंड दिया है. हम लोग को टोटल डिविडेंड दिया गया है 9600. So these are the four given datas that are given in the problem itself. All right. हम लोग को पूछा क्या है फेस वैल्यू, याद रखो वो हम लोग को पूछा है. तो पहले मैं तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करता हूँ. नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट
डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। अभी फॉर्मूला तुम लोग को देखना है कहाँ पे, फॉर्मूला नंबर 2 में देखो, 2A 2B 2C, 2B या 2C में फॉर्मूला दिया है मैंने नंबर ऑफ शेयर्स का। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग। डायरेक्टली यू कांट गो विद फॉर्मूला नंबर 1, यू नो। फॉर्मूला नंबर 1 में हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स का रिक्वायरमेंट है, तो पहले हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स फॉर्मूला नंबर 2B से निकाले, 2C से निकालेंगे। फॉर्मूला नंबर 2C देख लो, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। So if you calculate total investment is already known to be as 9 lakh divided by 15, then this will be giving you as 60,000 shares. तो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को मिले हैं 60,000 शेयर्स लिखा हूं मैंने, रुपीस नहीं लिखा हूं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा शेयर्स में ही होगा, रुपीस में नहीं होगा, ये बात याद रखो तुम लोग। तो पहले तो मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकाला है, जो कि कितना दिया है, कितना मिला, आई मीन 60,000। ऑलराइट, अब इसके बाद हम लोग डिविडेंड के लिए जाएंगे। तो पहले हम लोग अज्यूम करेंगे लेट द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, हमको पता नहीं शुरुआत में यही कैलकुलेट करना है, तो वी आर अज्यूमिंग द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर टू बी रुपीज एक्स। फिर टोटल फेस वैल्यू हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला नंबर 1A में देख लो, बिफोर गेटिंग विद द टोटल डिविडेंड यू नीड टू कैलकुलेट विद TFV, टोटल फेस वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला है फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है, स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स मल्टीप्लाइड बाय 60,000, so that will be giving you 60,000x. So this is your total face value. All right, so total face value आएगा 60,000x। उसके बाद हम लोग टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। द टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला दिया, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, आई रिटन द शॉर्ट फॉर्म एज टोटल फेस वैल्यू। ऑल राइट, तो टोटल डिविडेंड हम लोग को ऑलरेडी दिया है 9,600, तो मैंने सब्सटीट्यूट किया है, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड दिया 8 है, तो 8/100 मल्टीप्लाइड बाय TFV विच ऑलरेडी वी गॉट एज 60,000x। तो इसके बाद वो डिनोमिनेटर का 100 जो है ना, 2 जीरो वहां का, और 60,000 का 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 600x, दैट विल कैलकुलेट एज 4,800x। So 9,600 will be equal to 4,800x. So x will be nothing, rupees 2. How you get with this? Because 9,600 को डिवाइड करेंगे 4,800 से, क्योंकि x के साथ 4,800 है ना, तो उसको अलग अदर साइड में लेके जाना है, and you have to divide it, you know, तो 9,600 divided by 4,800. So in that way you get the x value as rupees 2 per share. तो इसका मतलब face value of one share is rupees 2. So this is how the problem has been completed. जिन्होंने लिख लिया उनका ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है या आधा लिखा है, they can just take the screenshot of this, you know, and after that we can go with the next question, and the next question will be done in the same manner by you all people. हो गया कि वेट करना है मुझको? I just wait for a few more minutes and then after that we can proceed ahead. So second question will be given to you in the similar manner, and you know, वैसे ही स्टेप करना, जैसे मैंने खाली डेटा चेंज किया, द फॉर्मेट आई हैव केप्ट वेरी मच सिमिलर, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इन द सेम मैनर, यू नो, so you can just take down by that time. And one more question I take it down, and even that also I solve it by myself. फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में तुम लोग को you will people will be doing it over there. I hope everyone has taken with the problem by now. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, वैसे ये मनु इन्वेस्टेड ₹3,000 टू बाय 12% शेयर at a market price of ₹150 each. So again we are supposed to find the face value of a share if we received a total dividend of ₹1,200. ये क्वेश्चन है, इसमें वापस से फेस वैल्यू पूछा है, वही टाइप का क्वेश्चन है कि वह डेटा मैंने चेंज किया। देखो हम लोग मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले लिखना क्या क्या दिया है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 3,000। लास्ट टाइम याद है 9 लाख था, इस बार 3,000 दिया है। मार्केट प्राइस लास्ट टाइम कोटेड प्राइस दिया था हम लोग को, इस बार हम लोग ने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया मार्केट प्राइस, कितना दिया है, ₹150। थर्ड गिवन डेटा, व्हाट इज द रेट ऑफ डिविडेंड, जो भी परसेंटेज में रहेगा जनरली यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड, तो राइट नाउ इट इज 12%। चौथा गिवन डेटा है टोटल डिविडेंड, कितना है, ₹1,200। ऑलराइट, इसके बाद पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, डू यू रिमेंबर, नंबर ऑफ शेयर्स वी वर यूज्ड टू कैलकुलेट। नंबर ऑफ शेयर्स का क्या फॉर्मूला था,
total investment divided by market price of one share. तो total investment 3000 है, market price 150 है, तो you have to divide this 3000 divided by 150. All right. तो 3000 को 150 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 शेयर्स लिखना है क्योंकि हम लोग शेयर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, पैसा होता तो रुपीस लिखते, बट ये शेयर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू रुपीज एक्स। ऑल राइट। फिर टोटल फेस वैल्यू ये भी कैलकुलेट करना है, तो फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो फेस वैल्यू तो हम लोग ने एक्स लिया, स्मॉल एक्स मल्टीप्लाइड बाय 20, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू 20x। फिर हम लोग ने फॉर्मूला लिखा है टोटल डिविडेंड का, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल फेस वैल्यू। So total dividend is already given to be 1200, and that is equal to 12 is the rate of dividend. So 12 divided by 100 multiplied by 20x. So when you do with this calculation, you will get 2.4x. You can very well use the calculator ना, कैलसी आप लोग यूज कर सकते हो, simple calculator is allowed in the examination also. तो 1200 इक्वल टू 2.4x आया, तो 1200 को डिवाइड करेंगे 2.4 से, तब जाके हम लोग को आंसर आएगा 500 रुपीज पर शेयर। So this is how the problem has to be taken. And similarly, we get for the second question, the answer of the face value of one share is rupees 500. You can again have with the screenshot, the one who has not taken, because time come, so by that time you can just have the screenshot and later on you can carry in the notebook. Next lecture से मैं काफी time दूंगा तुमको हर एक problem के लिए. Today is the first lecture and I need to carry some more parts here, so I'm not taking with that.